بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سٹوری نیم بھولے میاں بنے دلہا۔ نام تو ان کا اقبال احمد تھا، مگر عرفیت بھولے میاں پڑ گئی۔ کب اور کیوں، یہ تو ایک لمبی داستان ہے۔ پہلوٹی کی اولاد تھے اور خاصے لاڈلے، کیونکہ بچپن میں بیمار بھی خوب رہے۔ پھر ان کے بعد اوپر تلے کی 3 بہنوں نے ان کی اہمیت اور بھی بڑھا دی۔ گو پھر یہ اکلوتے بھائی نہ رہے اور ایک اور بھائی بھی بہنوں کے بعد آوارد ہوئے، مگر ان کی اہمیت مسلمہ رہی۔ سخت گرمیوں کے دن اور بھولے میاں کھیلنے کے شوقین۔ اماں باوا میں تو ان کی جان بند تھی، جیتے ہی انہیں دیکھ دیکھ کرتے وہ کاہے انہیں لو کے تپیڑے کھانے باہر بھیجتے، سو انہیں دل محسوس کر دوپہر کو سونا ہی پڑتا، مگر عصر کے بعد نہا دھو کر کھیلنے نکلتے تو دوستوں کی بھری دوپہر میں کی گئی شرارتوں کی روداد سنتے۔ بچپن کے البیلے روپہلے دن تھے، ان کا بھی جی للچاتا، مگر خیر ایک دن انہوں نے خوب توڑ نکالا۔ دوپہر کو سارا گھر تہہ خانے میں سوتا تھا۔ 70 کا زمانہ تھا، ایئر کنڈیشنر تو خواب ہی تھا، مگر تہہ خانہ خوب ٹھنڈا ہوتا۔ آخر ایک دن ان کو سوجھ ہی گئی، آنکھیں بند کر کے سوتے بن گئے۔ جیسے ہی اماں باوا کی آنکھ لگی یہ کلانچے بھرتے باہر نکلے، پھر کچھ سوچ کر دروازے کے آگے کنڈی بھی لگا دی تاکہ کسی کی آنکھ بھی کھل جائے تو باہر نکل کر ان کے کھیل میں خلل نہ ڈال سکے۔ خیر کھیل میں ایسے لگے کہ تہہ خانے میں قید بیچارے ماں باپ اور بہن بھائی کا خیال ہی دماغ سے نکل گیا۔ وہ بھوکے پیاسے شام تک تہہ خانے کا دروازہ پیٹتے رہ گئے۔ جب بھولے میاں کا کھیل بند ہوا تو ان کی خلاصی ہوئی، اور اس کے بعد بھولے میاں کا کیا حال ہوا یہ بتانا ضروری تو نہیں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس زمانے میں بچوں کو دیر سے اسکول بھیجنے کا رواج تھا، آج کل کی طرح نہیں کہ 3 سال کے ہوئے نہیں اور اسکول پہنچ گئے۔ ان کو بھی 8 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم کرنے کے بعد اسکول داخل کروا دیا گیا۔ کھیل کے شوقین تو خیر شروع سے ہی تھے، مگر جب اسکول جاتے تو ایسے لگتا گویا قید خانے کو جاتے ہوں۔ ابا بینک مینیجر تھے، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ بھولے میاں ان پڑھ رہ جاتے، مگر اسکول جاتے ہوئے جیب تجو سناریے اور دینے موچی کے بیٹوں اور ان کے سنگی ساتھیوں کو مزے اڑاتے دیکھتے مگر اسکول جاتے ہوئے جب تجو سناریے اور دینے موچی کے بیٹوں اور ان کے سنگی ساتھیوں کو مزے اڑاتے دیکھتے تو جی محسوس کر رہ جاتے۔ خیر اس کا بھی حل سوجھ ہی گیا۔ صبح کو اماں کے ہاتھ کا مزیدار ناشتہ اڑاتے، اسکول کے لیے توشہ دان بھرواتے اور اسکول روانہ ہوتے، مگر اسکول جانے کے بجائے اگلی گلی کی خالہ خیرن کے گھر پہنچ جاتے، ان کی مرغیوں کے ڈربے میں اپنا بستہ چھپاتے اور مزے سے دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جاتے۔ درمیان میں بھوک لگتی تو توشہ دان سے خود بھی کھاتے، یار لوگوں کو بھی کھلاتے، مگر آخر کب تک۔ ایک دن خالہ خیرن نے پکڑ ہی لیا، اور پھر ایسی درگت بنی کہ بھولے میاں سب کچھ بھول گئے، مگر دوبارہ اسکول کا راستہ نہ بھولے۔ ویسے تو بھولے میاں اماں باوا کے خاصے لاڈلے تھے اور ان کو اندر باہر کے کام وغیرہ اتنے بتائے بھی نہ جاتے، مگر جو بتائے جاتے وہ بھی ایسی خوبی سے کرتے کہ دوبارہ ان سے کوئی کام کروانے سے توبہ کر لی جاتی۔ ایک دن اماں نے کچھ سودا سلف لینے بھیجا، 1-2 گلی چھوڑ کر ہی بازار تھا، ضرورت کی ہر چیز مل جاتی۔ خیر سارا سامان جب لے لیا تو کافی زیادہ اور بھاری لگا، اسے کندھے کے رومال میں باندھا اور کندھے سے لٹکا کر گھر کو چلے۔ راستے میں 1-2 دوست مل گئے تو ان سے حال احوال اور باتوں میں لگ کر موصوف ذرا دیر سے گھر پہنچے۔ اتنے میں اماں جی گھر کے دروازے تک کوئی 10 چکر تو لگا ہی چکی ہوں گی۔ بھولے میاں کو آتے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا، کام کو بھی خاصی دیر ہو گئی تھی، فوری ضرورت نہ ہوتی تو بھولے میاں سے کیوں منگواتی، مگر بھولے میاں کو خالی ہاتھ دیکھ کر ماتھا پیٹ کر رہ گئیں۔ سامان کا پوچھا تو میاں نے فخریہ کندھے سے رومال اتار کر آگے کیا کہ یہ رہا سامان، مگر یہ کیا، رومال میں تو تنکا تک نہ تھا۔ بولے اوہو، رومال کھل گیا، سامان تو سارا راستے میں ہی گر گیا ہوگا۔ اے لو، اماں بیچاری کیا کہتی، سامان کندھے سے گر گیا اور برخوردار کو خبر ہی نہ ہوئی۔ باہر چھوٹے میاں کو دوڑایا گیا اور وہ نہ صرف یہ کہ منٹوں میں سارا سامان لے آئے بلکہ راستے میں دیکھتے گئے اور گرا ہوا تقریباً سارا قابل استعمال سامان بھی اٹھا لائے، مگر پھر اماں نے بھولے میاں سے سودا سلف منگوانے سے توبہ کر لی۔ کہنے لگیں اس سے اچھا تھا پہلے ہی چھوٹے کو بھیج دیتی۔ خیر یہ تو سودا سلف کی بات تھی، کام ان کو جو بھی بتایا جاتا ہے ایسی خوبی سے کرتے کہ دوبارہ کرنے سے جان چھوٹ جاتی اور کام بتانے والا خود ہی توبہ کر لیتا۔ ایک دن چھوٹی اپیا کو سوٹ لینا تھا، دراصل چھوٹے ماموں کی بیٹی نے اپنے سوٹ پر موتی ٹانکے اور ایسی خوبصورت کشیدہ کاری کی تھی کہ ان کا بھی جی للچا گیا کہ وہ بھی ویسا ہی بنوائیں۔
अब्बा सुबह के गए, शाम को आते, अम्मा घर में मसरूफ़ होती। मामू का घर खासी दूर था, छोटे भाई को भी न भेज सकती थी, ले देकर भोले मियाँ ही रह गए थे। खैर, खूब समझा बुझा कर के नीलम बज्जो का हरा सूट जिस पर सफ़ेद कशीदा है वो नमूने के लिए दे दें। फिर भी तसल्ली ना हुई तो रुका लिख कर दे दिया कि तीनों बहनों में से जो भी बहन आगे खड़ी हो उसको दे दें और जवाब ज़रूर लेकर आए। 3 घंटों के इंतज़ार के बाद भोले मियाँ खाली हाथ लटकाते आ गए तो अपिया रोंखी सी हो गई। लो भला, नमूने के लिए सूट नहीं दिया क्या? भराई हुई आवाज़ में पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, भोले मियाँ ने झट जवाब दिया। हाँ, मैं भी कहूँ नीलो बज्जो ऐसी हैं तो नहीं। तो फिर सूट है कहाँ, कहीं गिरा तो नहीं आए? अपिया को नई परेशानी हुई। नहीं, वो हमने तो रुका ही नहीं दिया, भोले मियाँ मासूमियत से बोले। हैं, मगर क्यों? इतनी दूर रुका देने गए और दिया ही नहीं? अपिया बाल नोचने पर आ गई। हाँ, तो खुद ही तो कहा था कि जो भी बहन आगे खड़ी हो उसे दे देना। अब सब की सब बैठी थी तो हम क्या करते? ले आए रुका वापस। लो पकड़ो। वो रुका उन्हें पकड़ा कर चलते बने। भोले मियाँ ने मैट्रिक तो जैसे तैसे कर लिया मगर एफए की इंग्लिश में अटक गए। मुसलसल 2 साल इंग्लिश के पर्चे की सप्ली देने के बाद भी कामयाब ना हुए तो अब्बा मियाँ ने बाकायदा उस्ताद रख लिया। उसने जैसे तैसे 5 माह में तैयारी करवा ही दी। पास होने का तीसरा और आखिरी मौका था। भोले मियाँ खुद भी कम परेशान ना थे, ऊपर से अब्बा मियाँ की धमकियाँ। अम्मा ने भी माजूरी जाहिर कर दी तो यार लोगों ने तसल्ली दी और पर्चे के दिन भोले मियाँ दोस्तों के जिलों में इम्तिहानी मरकज़ पहुँचे। अब ये पर्चा देने हाल में गए और यार लोगों ने भाग दौड़ शुरू की कि किसी तरह पर्चे के कुछ सवाल पता चलें तो भोले मियाँ की मदद का कुछ किया जाए। थोड़ी भाग दौड़ के बाद 2 सवाल, एक स्टोरी और एक उर्दू ट्रांसलेशन का पता चला तो उन्होंने जैसे तैसे दोनों सवाल हल करके चपरासी के ज़रिए अंदर भिजवाए। ये तसल्ली तो थी कि कोर्स वाले सवाल तो भोले मियाँ खुद ही भी हल कर ही लेंगे। इस भाग दौड़ में 2-2.5 घंटे कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। हाँ, आखिरी आधा घंटा भोले मियाँ के लिए खासा मुश्किल से कटा। आखिर उनका दूर ही से खुशी से चमकता चेहरा नजर आया तो दोस्तों के दिल को कुछ तसल्ली हुई कि चलो इस दफ़ा तो नैया पार लगी। करीब आने पर जब पर्चे का हाल पूछा तो भोले मियाँ शुरू हो गए। हाँ, पर्चा तो आसान था, सारा हमें आता था, बस वही स्टोरी का मसला था, वो तुम लोगों ने भेज दी। और हाँ, ये खूब मजाक किया मेरे साथ, इंग्लिश के पर्चे में उर्दू लिख कर भेज दी। बिल्कुल पागल समझ लिया क्या हमें? खैर, इतने भी पागल नहीं हैं हम, एक लाइन भी उर्दू की नहीं लिखी हमने। भोले मियाँ का फखरिया अंदाज और दोस्त बेहोश होने के करीब हो गए। बाद में खूब ही लतीफ़ा बना मगर भोले मियाँ इंग्लिश में पास ज़रूर हो गए। जैसे तैसे करके भोले मियाँ ने एफए कर लिया तो अब्बा मियाँ ने कह सुनकर बैंक में क्लर्क भर्ती करवा दिया। नौकरी लगी तो अम्मा को उनकी शादी का शौक चुराया और लगी चांसी दुल्हन ढूंढने। खूब ही जूतियाँ घिसी, आस पड़ोस के लोग उनकी शराफत के तो कायल थे मगर, और वैसे भी अम्मा को चाहिए थी चांसी दुल्हन। खैर, ढूंढ ही ली और घर में जैसे जैसे शादी की तैयारी शुरू हुई और आस पड़ोस से लोगों का आना जाना शुरू हुआ, दुल्हन की खूबसूरती के चर्चे भी अम्मा ने बढ़ चढ़ कर बताना शुरू किए। आखिर इन्हीं लोगों ने तो अपनी अपनी बेटियों की दफ़ा इनकार किया था। अब ये आजकल का ज़माना तो था नहीं कि 2-3 दिन में ही शादी निपट जाती। महीना 1.5 महीना पहले ही तैयारी शुरू हो गई। बड़े बेटे की शादी थी, पड़ोस ने कभी बरी की तैयारी के लिए जमा तो कभी बरी की लटकाई के लिए। खैर, आते जाते भोले मियाँ ने भी चांद सी दुल्हन की खूबसूरती के चर्चे सुने तो अच्छा खासा गंदमी रंग सांवला लगने लगा और उसे गोरा करने की फिक्र में हलकान रहने लगे। अम्मा बहनों से क्यों कहते, शर्म भी आखिर किसी चिड़िया का नाम है। 1-2 दोस्तों को राजदार बनाया और उनके मशवरे पर खुशबू वाला साबुन ले आए और खूब ही रगड़ रगड़ कर सुबह शाम मुंह चमकाने लगे। और खुदा झूठ ना बुलवाए तो शादी के दिन तक रंग अच्छा खासा लश्कारे मारने लगा। मगर महीने में 1-2 बार लाल साबुन से मुंह धोने वाले भोले मियाँ जब दिन में 2-2 बार खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल करने लगे तो बात छुपने वाली कहाँ थी। भोले मियाँ की शादी के दिन गोरा लगने की ख्वाहिश की खबर भी यार लोगों तक पहुँच गई और उनके जहनों में भी एक अनोखी शरारत परवरिश पाने लगी। खैर, शादी का दिन भी आ पहुंचा। जाड़े के दिन थे तो सरे शाम ही निकाह के लिए दुल्हन के घर पहुंचना था। चुनाचा जोहर की नमाज के बाद ही तकरीब शुरू करने का इरादा किया गया क्योंकि दुल्हा को सेहरा बांधना यानी सेहरा बंदी की रस्म होना थी, फिर रंग डालने की रस्म भी की जाती।
दुल्हा पर रंग डालने की रस्म कुछ यूं होती कि सफ़ेद रंग का सूट पहनकर दूल्हा सजी सजाई घोड़ी पर बाहर निकलता। घोड़ी चढ़ाई की भी पूरी रस्म होती थी, जिसमें बहनें और भाभियां दूल्हा को घोड़ी पर चढ़ने से पहले रास्ता रोककर नेक देने पर मजबूर करती थीं। फिर दूल्हा इस शान से बाहर निकलता कि घोड़ी के आगे पीछे दोस्त अहबाब भंगड़ा डालते। ढोल बाजे और ताशों की वजह से कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती। पूरे महल्ले में फिरने के बाद महल्ले की मस्जिद से पानी लिया जाता। ये पानी फिर दूल्हा के नहाने के पानी में शामिल कर लिया जाता। बड़ी बूढ़ियों के मुताबिक इस तरह दूल्हा नज़र लगने से बच जाता था। फिर दोबारा दूल्हा के घर के आगे दूल्हा को घोड़ी से उतारकर उस पर रंग डाला जाता और यूं रंग डालने की रस्म का इख्तिताम होता। रंगों में हरा, सुर्ख और पीला रंग घोलकर दूल्हा के सूट पर हल्के हल्के छींटे डालने होते थे। तो ज़ोहर की नमाज के बाद रस्में शुरू हुईं और रस्में तो खैर खैरियत से गुजर गईं, मगर रंग डालने की रस्म में यार लोग शरारत कर गए। हरा, पीला और सुर्ख रंग तो घोलकर हल्के चिंटे ही डाले गए। साथ जिद्दत ये की गई कि उनके सर पर स्याह रंग बगैर घोले यूं ही सफूफ की सूरत छिड़क दिया गया। इस वक्त एक तो शोहल मेले में किसी ने तवज्जो न दी तो हल्का रंग समझकर तरह दे गए, मगर जब दूल्हा मियाँ उर्फ भोले मियाँ नहाने गए तो वो पक्का काला रंग पानी के साथ घुलकर उनके पूरे चेहरे को स्याह बना गया। अब जाड़े का मौसम, बारात तैयार खड़ी है, भोले मियाँ हैं कि नहाकर निकलने का नाम नहीं ले रहे। निकल दे भी कैसे? गौसल खाने में लटकते छोटे से आईना में वो अपना हाल देख ही चुके थे, जिस चेहरे को खुद देखकर डर के मारे चीख निकलते निकलते रह गई। वो बाहर खड़ी बारात के सामने कैसे लेके जाते? दरवाज़ा खटखटाया गया तो उन्होंने खुशबू वाली साबुन की टिकिया की फरमाइश कर दी। अब उनके गोरा होने की ख्वाहिश होते होते अम्मा बाबा के कानों तक पहुँच तो चुकी थी, मगर इतनी ज़्यादा? पूरी एक टिकिया ख़त्म करने के बाद दूसरी। अम्मा हैरान, बहनें परेशान और अब्बा गुस्से से पेचोताब खाकर रह गए। खैर दूसरी टिकिया देने के बाद भी भोले मियाँ तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। दोबारा सह-बारह दरवाज़ा खटखटाने पर कपकपाती आवाज़ में मुल्तानी मिट्टी मांगी गई। ये उनकी बहनें अक्सर लगाती थीं, तो उसकी अफादियत की थोड़ी बहुत भोले मियाँ को भी खबर थी। अम्मा ने अब्बा से छुपाकर छोटे मियाँ को नुक्कड़ की दुकान पर दौड़ाया। दुकानदार खुद बारात में शामिल, दुकान कौन खोलता? बहरहाल दुकान खुलवाई गई और मुल्तानी मिट्टी गुसल खाने में दुल्हा मियाँ को पहुँचाई गई, मगर तब तक अब्बा मियाँ के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। कड़कदार आवाज़ में भोले मियाँ को बाहर आने को कहा। गुसल खाने के सामने रिश्तेदारों का एक हजूम मुंतज़िर था और जो शख्सियत बरामद हुई उसे देखकर कमज़ोर दिल हजरात की चीखें निकल गईं और माओं ने बच्चे बगल में दाब लिए। काला भुजिंग रंग और सर्दी से कपकपाते जामनी होंठ, सर में डाले गए काले रंग ने पानी के साथ मिलकर खूब ही रंग जमाया था। पूरी रोदाद सुनकर अब्बा मियाँ सर पकड़कर रह गए। अगर दोस्तों ने शरारत कर ही डाली थी तो पहले इस सूखे रंग को अच्छी तरह झाड़ कर ही नहाना था, फिर ये नौबत काहे को आती? दोस्तों को भी क्या खबर थी कि उनकी शरारत ऐसा रंग जमाएगी। अब सब परेशान। भोले मियाँ ने इस हुलिये में बारात के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। अब बारात बिन दुल्हा के जाए तो जाए कैसे? किसी ने बेसन मलने का कहा तो कोई उबटन लगाने का मशवरा देने लगा। सर्दी से दुल्हा की हालत ख़राब थी, पर वो मुंह रगड़े ही जा रहे थे, मगर नतीजा वही ढाक के तीन पात। खैर इस वक्त सेहरा बांधने की रस्म खूब काम आई। बहनों ने बड़े अरमानों से रवानगी बारात के वक्त दूल्हा को बंधवाने के लिए खूब प्यारा, घुटनों को छूता सुनहरा सेहरा बनवाया था। वो बंधवा कर दुल्हा मियाँ को बारात ले जाने पर राज़ी किया गया। पशेमान दोस्त साथ साथ रहे कि कहीं सेहरे की लड़ियाँ इधर उधर होकर दुल्हा का चेहरा वाजिया न कर दें। यूं शादी तो बखैरो खूबी निपट गई, मगर हुजला अरूसी में दुल्हा मियाँ को देखकर चांद सी दुल्हन का क्या हाल हुआ वो एक अलग दास्तान है। हाँ, यार लोगों का कहना है कि उनकी वजह से भोले मियाँ के बगैर कुछ कहे ही बिल्ली मारी गई। कोई बताए कि हम बतलाएं क्या? डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।